Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start first chapter of 11th physics. Okay, that is physical world. Okay, physical world. Okay, so exam purpose this chapter is not so important. He may ask for 1 or 2 marks, that's it. Okay, but we have to know the basic thing. This chapter helps us to generate the basic things or interested in physics. Okay, that means see what we call, that is it excited us about the physics. Okay, so let us see the things whichever comes in this chapter. Okay, so first we are going to we already said the definition of physics, that is what is physics in detail, and first video. If you not seen that video, you can see that video. I have give the link in my description box. Okay, so I just give brief introduction about that. Okay, so physics. Okay, the physics word, it is derived from Greek word. Okay, it comes from Greek word physia. Physia. Okay, not fausia, it is physia. Okay, this mean it is nature. Okay, it is nature. So ultimately the physics is nothing but it is the nature itself. That means in nature, whatever available the things, so we study those things in a systematical manner. Okay, that is nothing but it is physics. Okay, the definition of physics is it is the systematical study of physical nature and natural phenomena. Okay, that I have explained in detail. That is my next previous video, so you can go through that. Okay, so now we are going to study the scope of physics. Why we have to study physics? Okay, what we have to know, what we have to know from physics. Okay, okay, so scope of physics. Okay, scope of physics. See, scope of physics means why we have to study physics, what we have to know from physics. Okay, so see, first thing is the scope of physics is very vast. Okay, the scope of physics is vast. Okay, that means see, physics has broad branches. Okay, that means it has a very broad range. Okay, we can learn, it has so many branches, like nuclear physics, okay, atomic physics, thermodynamics, electrodynamics. It has so many branches. Okay, so we are learn those branches. Okay, what they have actually. Okay, so this is the scope of physics. So one more thing is there, that is, if I talking in physics, we are going to learn from atomic phenomena to astronomical phenomena. That means for from a small thing to a broad things. Okay, we are learn. So see here how we are going to learn means. Okay, that means a range. If I talking about range, okay, here atomic range is there. That means atomic phenomena. Atomic phenomena. Okay, atomic phenomena to astronomical phenomena. Astronomical phenomena. Okay, if I talking about range. Okay, okay, when we consider mass. Okay, if I talking about mass, so the mass range, that is here mass is 10 raised to minus 31 kg. Okay, this is the mass of what?
electron. Okay, range. From this range to we are studied, that is observable universe, that is 10 raised to 55 kg. Okay, see how big this is. So that means हम क्या कर रहे हैं, एक छोटे पार्टिकल, एक छोटे से छोटा पार्टिकल जो जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसकी मास से लेकर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की जो मास है, इन बिटवीन दिस, ओके, हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं. इन बिटवीन जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, हम उन सब की क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. किसमें, फिजिक्स में. ठीक है. तो अगर हम बात करें, ओके, लेंथ, if I talking about length, so atomic phenomena, that is 10 raised to minus 15 meter, that is the radius of nucleus. okay, so यहाँ से लेकर हम 10 raised to 26 मीटर तक हम, ये क्या है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की रेडियस है. ठीक है. तो इन बिटवीन जितने भी लेंथ आ रहे हैं, हम उन सब की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ओके, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ओके, हम इन सब की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं. मतलब कहने का मतलब क्या है, एटॉमिक फिनोमिना से लेकर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना तक हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. किसमें, फिजिक्स में. ठीक है. और अगर हम बात करें टाइम की, ठीक है, इफ आई टॉकिंग अबाउट टाइम, सो 10 रेज टू माइनस 22 सेकेंड से लेकर, ठीक है, ये क्या है, लाइफ टाइम ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स की लाइफ टाइम है. यहां से लेकर हम 10 रेज टू 18 सेकेंड, ये क्या है, लाइफ टाइम ऑफ अर्थ. ठीक है. यहां तक भी हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. ठीक है. और अगर मैं बात करूं स्कोप ऑफ फिजिक्स की, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं. ओके, सो फिजिक्स मेक्स आवर लाइफ वेरी इजी. ठीक है. ये क्या कर रहे हैं, हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसे बहुत ही आसान बना रहा है. कैसे, अब एग्जांपल देखो, हमारे पास क्या है, गूगल मैप्स है ना, गूगल मैप्स है. इसकी मदद से क्या कर रहे हैं हम, अगर कोई प्लेस हमें पता नहीं है, फिर भी हम क्या करें, उस जगह हम जा सकते हैं. कैसे, अगर हमने एंटर किया कोई भी प्लेस, तो वो कहाँ जाता है, सैटेलाइट के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. तो सैटेलाइट इज नथिंग बट, ये फिजिक्स तो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. ठीक है. तो ये है फिजिक्स के स्कोप. ठीक है, स्कोप ऑफ फिजिक्स. ओके, सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा. तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है. ठीक है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स. ठीक है. फिजिक्स में ना ऐसे क्वेश्चंस है जो हमारा दिमाग हिला देते हैं. ठीक है. जैसे कि एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स. ठीक है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स. ओके, तो हियर सी हियर, ओके, द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. Okay, in rainy season rainbow is formed. Okay, so how it is formed, okay, why it is formed, okay, question comes no. तो क्या है, ये एक्साइटमेंट है ना. क्या कोई जाकर पेंट करता है आसमान में, नहीं ना. किस लिए हो रहा है ये, इसके पीछे फिजिक्स है ना. तो फिजिक्स क्या है, आंसर देता है इसके लिए, क्यों रेनबो फॉर्म हो रहा है. ठीक है, ये क्या है, एक्साइटमेंट है. और अगर मैं बात करूं, ठीक है, स्काई लुक्स ब्लू, वाई, है ना. क्यों ये हमें नीला नजर आ रहा है.
ये लाल क्यों नहीं है, पीला क्यों नहीं है ना क्वेश्चंस। तो ये क्या है, एक्साइटमेंट है। हाँ हो सकता है ना, लाल भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, पर ये ब्लू ही क्यों है ना। तो इसके पीछे ये क्या है, फिजिक्स है इसके पीछे। कौन सी फिजिक्स है, वो जो है लाइट स्कैटरिंग होती है वहाँ पे, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, ठीक है। ये रेनबो फॉर्मेशन किस लिए होता है, क्यों, ये भी पढ़ेंगे, और स्काई ब्लू क्यों है ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बिग शिप, ओके, सॉरी, हाउ a big ship float in water, है ना। हाउ अ बिग शिप फ्लोट इन वाटर, है ना, सिंपल है। अब देखो एक छोटा सा अगर पत्थर मैंने समंदर के अंदर या पानी के अंदर फेंका तो क्या है, वो डूब जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी सी जो शिप जहाज है वो नहीं डूबती। हालांकि वो एक लोहे से बनी है, उसे तो डूबना चाहिए था, लेकिन नहीं डूबती। क्यों, फिजिक्स इसका आंसर देता है हमें, ठीक है। ये है ना एक्साइटमेंट, क्यों नहीं डूब रही, इतनी बड़ी जहाज है, वो भी लोहे की है, इसे तो डूबना चाहिए था, लेकिन वो नहीं डूब रही, ठीक है। तो इसका आंसर हमें फिजिक्स बताता है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। चलो और एक बताता हूं मैं। पेन बेंड्स, ओके, व्हेन वी पुट इनटू वाटर, है ना। पेन बेंड्स व्हेन वी पुट इनटू वाटर, जब अगर मान लो ये मेरा मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर को अगर मैंने वाटर में, पानी में ऐसे डिप किया तो ये क्या मुझे कैसे नजर आएगा, ये थोड़ा सा बेंड हुआ नजर आएगा, जैसा कि देखो यहाँ, ठीक है। ये है एक बीकर जिसमें पानी है, अगर मैंने ये मार्कर डिप किया तो यहाँ से ये मुझे कैसा नजर आएगा, बेंड, स्लाइटली ये थोड़ा बेंडिंग नजर आएगा, ठीक है। क्यों नजर आ रहा है, मेरा मार्कर या मेरा पेन तो सीधा है ना, तो ये क्यों ऐसा नजर आ रहा है ना, इसके पीछे फिजिक्स है ना। ये क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग ऐसे बहुत सारे हैं। हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, ठीक है। अगर ये बोर्ड की बात करें तो ये इट इज मेड अप ऑफ एटम्स, सो मेनी एटम्स, ओके। एटम्स क्या है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, रिवॉल्व कर रहे हैं, कैसे, अरे रिवॉल्व कर रहे हैं मतलब कैसे, है ना, इंटरेस्टिंग। तो ये सब हम फिजिक्स में एक्साइटमेंट बहुत सारा है जो है हम स्टडी करेंगे आगे, ठीक है। तो ये थी एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो ऐसे ही हम देखेंगे आगे। तो आज के वीडियो, आज की क्लास यहीं पे मैं रोकता हूँ, ठीक है। आई स्टॉप हियर टुडे। So in my next class we are going to study other concepts, okay. So अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ओके, और सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू।